الحمدللہ الذی وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے چاراؤں کے چارہ، بے سہاروں کے سہارا، ارے وہ آقا جن کا چہرہ والضحا، جن کی زلف واللیل اذا سجا، جن کا سینہ علم نشرح لک صدرک، ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں تو صداقت کے تاجدار ہو جاتے ہیں، ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں تو عدالت کے تاجدار ہو جاتے ہیں، ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی آتے ہیں تو سخاوت کے تاجدار ہو جاتے ہیں، ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں حضرت علی آتے ہیں تو شجاعت کے تاجدار ہو جاتے ہیں، ارے وہ آقا جن کی شان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی بریلی کی سرزمین سے کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، آنکھوں کا نور دل کا سکون جان کا قرار، آنکھوں کا نور دل کا سکون جان کا قرار، اے آمنہ کے لال میں کیا کیا کہوں تجھے، آتا نہیں سمجھ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت اتنا لکھتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں آخر نبی کے شان میں کون سے الفاظ لائے جائیں، آخر عشق کا قلم اٹھ ہی جاتا ہے، اور کیا ہی خوب تحریر فرماتے ہیں کہ آتا نہیں سمجھ میں کیا کیا کہوں تجھے، آتا نہیں سمجھ میں کیا کیا کہوں تجھے، افضل کہوں کہ اعلیٰ یا اولا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے انہی آقا کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر اور لبوں کو چوم چوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ درود پاک پڑھنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ہم درود پاک اس انداز سے پڑھیں کہ شاہ جی بابا کے گنبد سے ٹکرا جائے، درود پاک اس انداز سے پڑھیں کہ خواجہ پیا کے گنبد سے ٹکرا جائے، درود پاک اس انداز سے پڑھیں کہ اعلیٰ حضرت کے گنبد سے ٹکرا جائے، درود پاک اس انداز سے پڑھیں کہ غوث پاک کے گنبد سے ٹکرا جائے، درود پاک اس انداز سے پڑھیں کہ سارے گنبدوں سے ٹکرا کر گنبد خضرا پہ ٹکرا جائے۔ پڑھیے بآواز من اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعات، آج بھی میری تقریر کا عنوان نماز ہوگا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بالکل بہت ہی عام ہو گیا ہے، نمازوں کو یوں ضائع کر دیتی ہیں جیسے نماز ہم پر فرض ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ نماز کیا ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کا کیا مقام ہے۔ معزز سامعات، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی عبادت کو فرض کیا تو زمین پر کیا، روزوں کو فرض کیا تو زمین پر کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا تو زمین پر کیا، حج کو فرض کیا تو زمین پر کیا، لیکن جب باری آئی نماز کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر نماز کو تحفے کے طور پر پیش کیا۔ لیکن غور کرنے کا مقام ہے، آج ہمارا کوئی دوست یا ہمارے ماں باپ یا ہمارے بھائی بہن ہمیں کوئی تحفہ دیتے ہیں تو ہم اسے بخوشی قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے قبول کرنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا عزیز ہم سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن کبھی غور دیا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جس اللہ نے ہمیں سانسیں دی ہیں، جس اللہ نے ہمیں طاقت و قوت دی ہے، کیا اس اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو ہم کچھ اہمیت دے رہے ہیں؟ نہیں، کبھی غور نہیں کیا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، اور افسوس صد افسوس آج ہم اس تحفے کو کوئی قیمت نہیں دے رہے ہیں، اس تحفے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو
अल्लाह के दिए हुए तोहफे को कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं, कहीं हमारा खालिक व मालिक हमसे नाराज़ ना हो जाए और उसकी नाराज़गी हमारी दुनिया आखिरत की बर्बादी का सबब ना बन जाए। मुअज़्ज़ज़ सामियात, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नमाज अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का ज़रिया है। नमाज अंबिया किराम की सुन्नत है, नमाज फरिश्तों की महबूब इबादत है। अरे नमाज तो रिज़्क़ में बरकती का सबब है। यही नहीं बल्कि नमाज वो अमल है कि कल क़यामत के मैदान में जबकि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, उस कड़े वक्त में सबसे पहले नमाज के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। इसलिए शायर कहता है कि मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, और उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। मौला में और बंदे में रहता नहीं हिजाब, मौला में और बंदे में रहता नहीं हिजाब, बेपर्दा है तजल्ली मौला नमाज में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामियात, खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ बनने का दावा करने वालियों, आओ आओ ज़रा देखो कि हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत का क्या आलम था, वो किस कदर सजदों की मुतवाली थी। रिवायतों में आता है कि जब मदीने के लोग खा पी कर सो जाया करते थे तो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बजाय आराम करने के मुसल्ला बिछाती थी और नमाज के लिए खड़ी हो जाती थी, और उनकी नमाजें इस कदर तवील होती थी, इस कदर लंबी होती थी कि पूरी की पूरी रातें गुजर जाती थी, मगर हज़रत फातिमा का एक सजदा अदा नहीं हो पाता था, बल्कि अपने रब से यूं अर्ज करती थी, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई हैं, तेरी रात तो खत्म हो जाती है मगर फातिमा का एक सजदा अदा नहीं हो पाता है। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए हज़रत फातिमा की इबादतों पर कि कभी सजदे में तो कभी क़याम में, कभी तस्बीह और तहलील में अपनी रातें गुजार देती हैं, बल्कि उनका एक सजदा भी अदा नहीं हो पाता है और पूरी की पूरी रातें गुजर जाती हैं। आज मेरी माँओं और बहनों, कुछ माँ बहनें ऐसी हैं जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती हैं, जो पढ़ भी लेती हैं तो ये सोचती हैं कि हमसे बड़ा कोई नमाजी नहीं है, बल्कि उनकी नमाजों का ये हाल होता है कि सर सजदे में होता है, दिल फैशन के बाज़ारों में होता है, सर सजदे में होता है, दिल अमूर खानादारी में होता है, सर सजदे में होता है, दिल बाल बच्चों में होता है, सर सजदे में होता है, दिल ये सोचता है क्या क्या खाऊं और क्या बनाऊं। मुअज़्ज़ज़ सामियात, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रही हो, और अगर ये ख्याल ना जम सके, अगर ये ख्याल ना जम सके तो इतना तो जरूर ख्याल जमा लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामियात, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नमाज पढ़ता है, जो सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ऐसी गैब से मदद फरमाता है जिसका उसे गुमान तक नहीं होता। आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को जो चाहने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कभी किसी हाल में नहीं छोड़ता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बहुत ही नेक पारसा खातून थी जो हमेशा नमाज़ों की पाबंद थी। जैसे ही अज़ान सुनती थी नमाज के लिए खड़ी हो जाती थी। एक मर्तबा वो मुक़द्दस खातून रोटी बना रही थी कि इतने में अज़ान होने लगती है। वो जैसे ही अज़ान की आवाज़ सुनती है अपनी रोटी को तवे पर छोड़ देती है और नमाज के लिए खड़ी हो जाती है। जब शैतान उस औरत की इस मोहब्बत को देखता है, जब शैतान उस औरत की इस नमाज की मोहब्बत को देखता है तो जल भुन कर राख हो जाता है और दिल ही दिल में सोचने लगता है कि मैं इस औरत को कैसे भड़काऊं। वो औरत से कहने लगता है, ऐ औरत, देख तेरी रोटी जल रही है, लेकिन कुर्बान जाइए उस औरत पर कि उस औरत ने अपनी रोटी के जलने की परवाह नहीं की, क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती है, वो भला रोटी के जलने की क्या परवाह कर सकती है। शैतान को क्या मालूम कि जिसके दिल में नमाजों की मोहब्बत हो, जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, वो भला रोटी के जलने की क्या परवाह कर सकती है। चुनांचे शैतान जब देखता है कि उसका कोई बार काम नहीं आ रहा है, वो औरत उसके बहलाने फुसलाने में नहीं आ रही है, तो वो कहने लगता है, उसका छोटा सा बच्चा जो वहीं पर खेल रहा होता है उसको जलते हुए अंगारों में फेंक देता है। अल्लाह अकबर। जैसे ही शैतान उसके बच्चों को अंगारों में फेंकता है, रब की रहमत मचल जाती है और मशीयत आवाज लगती है, ऐ आग, सुन ले, तेरा काम जलाना है, तू लोगों को जलाती है, लेकिन तू आज इस बच्चे के लिए आग नहीं बल्कि खिलौना बन जा। और ऐसा ही होता है, वो आग उस बच्चे के लिए खिलौना बन जाती है। जब धीरे धीरे इस बात की इत्तला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को होती है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
जब धीरे धीरे इस बात की इत्तला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को होती है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस औरत को बुलाते हैं और फरमाते हैं, ऐ औरत, ये तो बता दे तेरा कौन सा वो पाक अमल था, तेरा कौन सा वो अमल था जिसकी बरकत से तेरा बच्चा आग में ऐसे खेल रहा था जैसे कोई खिलौनों से खेलता है। तो उस औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बज़ाहिर मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है, लेकिन मेरा एक अमल है और वो ये है कि मैं हमेशा नमाज़ों की पाबंद रहती हूँ। जैसे ही अजान सुनती हूँ नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ औरत, यही वो तेरा अमल है जिसकी वजह से तेरा बच्चा अंगारों से खेल रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामियात, देखा आपने कि जो नमाज़ें पढ़ती हैं, नमाज की बरकत से उसका बच्चा आग में ऐसे खेल रहा था जैसे कोई खिलौनों से खेलता है। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामियात, मैं आपको एक ऐसी हदीस का खुलासा बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर जिसको भी मेरी किसी भी माँ ने अगर दिल से सुन लिया तो यकीन जानिए वो ज़रूर तौबा कर लेगी और इन तमाम गुनाहों से बच जाएगी। हदीस का खुलासा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने मेराज की रात एक औरत को इस हाल में देखा कि वो अपनी ज़बान के बल जहन्नम में लटकी हुई है। दूसरी औरत को मैंने इस हाल में देखा कि वो अपनी बालों के बल जहन्नम में लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने इस हाल में देखा कि वो अपनी छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई है। चौथी औरत को मैंने इस हाल में देखा कि उसके दोनों पैर सीने से और दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं। पांचवी औरत को मैंने इस हाल में जहन्नम में लटके हुए देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है, जिस्म गधे की तरह है और सांप बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं। और छठी औरत को मैंने इस हाल में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और फरिश्ते उसको लोहे के हथौड़